Okay, good evening, friends. Welcome you all to CSC Edge and Socratic Debates channel on Telegram. So, in today's voice chat, this is a weekly Sunday essay voice chat wherein we shall be discussing 2021 essay mains question paper. And specifically, we are discussing two questions, which is question number 3, which is really rational, and topic number 8, that is there are better practices to best practices. So the idea here is we shall be reading the essay topic. Everybody has to put forward their views and interpretation of the essay. We'll go step by step, introduction, body, conclusion format. We'll see what quotes can be applied, what scholars can be written, what kind of structure can be given to the question. So guys, I request all of you to feel free to speak up and open up, because these all are philosophical essays. All of your inputs will be valuable, and everybody can apply your brain and just give 1 or 2 points as much as you can. So let's get started with topic number 8. The statement reads, there are better practices to best practice. ठीक है? So what do you guys understand from this topic? What is your interpretation? Sir, this is one of the essays which I actually wrote. And the first thing that came to mind was that this was one of the easier essays. And best practices was in inverted commas in the question paper. So the thing that came to mind is best practices as in like a standard operating procedure. Like, the things that we follow, the rules that we follow. And just say quality checks or something like that. So these things came to mind. And I began my essay with an anecdote. So last time when we had discussed, we had kind of built the framework that there will be an introduction. It can be a story or something like that, followed by an anchor passage. So the introduction which comes to mind to me is, if you guys have seen that series Chernobyl, have you guys seen it? It's a popular series. Yeah. Yeah. Chernobyl Yeah, disaster. so that Chernobyl disaster series came to mind, and so the way I put it, like, if you remember the character Dyatlov, so he was working as a nuclear scientist in one of the reactors, and he had a very long career, 25 years. So he was like kind of overconfident that nothing can go wrong like this. And because of his confidence that he had gained by following the rules and by having such a long career, on that fateful night, there was a disaster in Chernobyl, and then the rest is history, right? There was so much of material loss, there was loss of life, and all of these things. So I had linked it like that, that no matter how many times certain critical infrastructure is like you operate it, you always have to keep a lookout and to be more vigilant. So that is like a small story that you can build, and it will easily fill like 2 or 3 paragraphs to explain that whole incident. I differ a bit you have written it in means, I mean, you have the courage to write, but the thing is, the evaluators who write this copy, they might not be aware of that particular instance, because it is a movie that is lesser known to this country, and that too you have connected with such a grand idea, but the theme of that was a person Dyatlov. I know that Dyatlov was No, the theme was not Dyatlov. I started the story. Like normally when we start a story, we start with some character, right? Like Anand is going somewhere or something like that. So that's how I started the story. But after like 2 or 3 sentences, I put it into the thing like nuclear infrastructure and how there are many SOPs, but they can go wrong. So like that I connected. Anyways, I understand what you're saying, but Chernobyl. नहीं, that's fine. I think ऐसा कुछ नहीं यार. We should not limit ourselves. It's fine. मतलब HD's story was also a good start. It can be one of the options. बाकी लोग बताओ, do you have any other alternatives introduction के लिए? You guys heard about Aurovilla? Okay, it's actually a beautiful place near Puducherry. Actually, when I heard about a story about that, I also start with the story. Like, it's a bare land. Okay, the practices are they planting trees, but not in a way that we plant trees. Okay, they try to adopt a scientific and better planning practices that are coupled with the nature. Okay, so one day, I don't remember her name,
Okay, she is the founder. She called all other followers of her. Okay, she's also a follower. I mean, it's a disciple of Aurobindo Ghosh. Aurobindo. And she tried to bring many talented people towards to make this barren land as a forest. So in the initial days, they never got, got any support from the community or even the government, but they keep doing. They keep doing in a way that everyone today will appear to be awesome because the practices they adopted it not it's a better and the best the best one but they adopted a practices that is coupled with the nature that is each and every day they try to improve and one after all it says 30 years after that then that barren land become a dense forest and that practices encourage many not only in India but many part of the world to build that like that. Okay, if you have anything to know about this, just Google Aurovilla because there are some important news regarding Aurovilla because of the Prime Minister visit, and there's a 30th anniversary of Aurovilla in the last year, I think. It's an introduction part, okay? Okay, fine. Next. Hi. Hello. In my point of view, I think there is no need to start a story always. We can use some quotes, and according to my understanding, I think that better practice is like we can take the example of our life ना जो रोज का होता है like sometimes someone is very good in their academic and they are getting top marks और someone is not getting good marks तो वो मतलब बेस्ट तो एक बार हो जाता है बट जो बेटर वो जो हम लोग डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं खुद को बाय होता है कि बेस्ट तो लोग एक बार दे दिया पर बेटर प्रैक्टिस जो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ like day by day in our during all the examination all these preparations I think that would be there. Yes, that's मैं स्टार्ट करता इस ऐसे को तो एक संस्कृत श्लोक है ठीक है एनसीईआरटी में था कभी पढ़ा था मैंने स्कूल टाइम में तो श्लोक ऐसा है कि करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान कसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। एक मिनट भाई ये अच्छा है बट ये संस्कृत नहीं है ये तो अवधी बोलेंगे या खड़ी बोली इंग्लिश ना तो प्रॉब्लम नहीं है वर्ड संस्कृत कल्चर का नहीं है कॉन्सेप्ट ये होता है सुनो हाँ वर्ड कल्चर ठीक कॉन्सेप्ट होता है ओके जहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश और संस्कृत या अदर लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो बट द थिंग इज यू शुड प्रोवाइड अ इंट्रोडक्शन टू लाइक अ ट्रांसलेशन टू इट ठीक है तो इसका मतलब ये है कि विद कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस विद कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट आप किसी भी चीज के अंदर बेटर से बेटर हो सकते हैं तो मैं इस स्ट्रेटेजी इस ऐसे में इस तरह से स्टार्ट करता फिर लिखता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फिर एक छोटा सा इंट्रो होता है कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और बेटर प्रैक्टिसेस क्या है फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट चालू करता उसके बाद फिर ऐसे कंटिन्यू करता तो ये चीज भी हो सकती थी। So according to you what are best practices and what can be better practices? फिर बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब इन्होंने बोला है कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब आपने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस कि भाई ये चीज मैं कर रहा हूँ जैसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना एक मेरे लिए बेस्ट प्रैक्टिस है ठीक है उसको आप और बेटर कर सकते सपोज करो ये एक्सरसाइज वाला नहीं ये गलत एग्जांपल हो गया एक एग्जांपल मैं देता हूँ जैसे बेस्ट प्रैक्टिस का एग्जांपल दिया आपने कि आपने एक स्टैंडर्ड एसओपी सेट कर दिया ठीक है स्टैंडर्ड एसओपी सेट कर दिया कि भाई हमें ये चीज फॉलो करनी है अपने काम के अंदर कि भाई ऐसे ही करना पड़ेगा बट हम क्या कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड एसओपी के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कहीं और से लर्निंग कर सकते हैं और तब जाके वो चीज बेटर बन सकती है तो ऐसा कुछ आएगा ये टॉपिक में मेरे हिसाब से यार जस्ट वन क्लैरिफिकेशन टू ऑल ऑफ यू यार ऐसे जो होता है ना ऐसे इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग यहाँ पे कुछ गलत कुछ सही नहीं होता जैसे आई थिंक पहले एसडी ने बताया था देयर इज नथिंग राइट और देयर इज नथिंग रॉन्ग so instead of countering what other person is saying or instead of giving anti arguments or pro arguments I would say if you have any
idea, share that. How would you do it differently? You tell that. मैंने बस आइडिया नहीं मतलब बाकी लोग को बता रहा हूँ मैं सबको. क्योंकि ऐसे का जैसा कॉन्सेप्ट है यही है कि आप जो लिख रहे हो अगर आपने उसको जस्टिफाई कर दिया, आपका फ्लो अच्छा है. बेसिकली देखो ऐसे में आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती, ये बात हमेशा ध्यान रखना. वो चेक कर पाते हैं कि आप जो लिख रहे हो उसके अंदर रस है, मतलब सामने वाला जो पढ़ रहा है ना उसको पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बस यही चेक किया जाता है. और आपकी बस राइटिंग कैपेसिटी दी जाती है, आपके आइडियाज को चेक नहीं किया जाता. बस ये है कि आपने जो लिखा है वो रीडर को बांध के रखे. एक लेमन जो है, अब जैसे मैंने जितने भी मेरा 4-5 साल में मैंने ये चीज सीखी है कि आप ऐसे को जितना बेसिक और सिंपल रखोगे ना, जैसे ये किसी ने इंट्रोडक्शन लिखा था लाइक एंथ्रोपोलॉजी वाला, तो बेसिक आप उसको ऑप्शन में मत डालो, आप उसको बेसिक सिंपल लैंग्वेज सिंपल आइडियाज रखोगे ना तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए किसी बंदे ने अगर एंथ्रोपोलॉजी नहीं समझी पढ़ी ना तो उसके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो पर्पस यही है कि भाई कोई लेमन पढ़े, अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा पढ़े जिसको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसको मजा आ जाए पढ़ के. बस वो ऐसा अगर आपने लिख दिया ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. बस ये कॉन्सेप्ट होता है ऐसे का. ये सही बोल रहे हैं सर. एक्चुअली मैं यूपीएससी का कोई मेंबर से मिला था एक बार, तो 2018 में एक ऐसे था जो मैं लिख के आया था, आईआर पे आया था, बॉर्डर मैनेजमेंट में समथिंग लाइक दैट. तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, तो वो बोलते हैं कि ऐसे का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. नहीं है आप कोई पैटर्न नहीं. वो लिख रहे हो तो आपको उस हिसाब से नंबर नहीं कटेगा. आपने क्या लिखा, कुछ ज्यादा ही गलत लिख दिया तो होता है, लेकिन कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होता जैसे जीएस क्वेश्चन का होता है ऐसा. तो आप जो लिख रहे हो वो रिलीवेंट होना चाहिए, बस उससे रिलीवेंट और सिंपल. सिंपल और रेलिवेंट, और बस बेसिकली कि आपका पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बना के रखे. अगर आपने पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बना के रख लिया ना, इवैल्यूएटर चाहे कोई भी हो, बस आपको नंबर मिल जाएंगे. उसको मतलब ये क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि अरे आगे क्या लिखा है, अरे आगे क्या लिखा है, एंड तक जाके फिर उसे लगना चाहिए अरे वाह मजा आ गया. बस वो चीज होना चाहिए. ओके गाइस, तो आई गेस दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं वापस. तो अभी जैसे इंट्रो कोई स्टोरी या फिर जैसे प्रोफेसर सर है उन्होंने बोला कि एक कोड से स्टार्ट कर सकते हो हम लोग. और एक और तरीका बताऊं स्टार्ट करने का, एक और तरीका बताऊं स्टार्ट करने का. हाँ बताओ सर. आप है ना कैसे स्टार्ट कर सकते हो, 2 तरीका बताऊं. देखो, आप एक कोई सेल्फ मेड हाथों हाथ मेड पोएम से भी स्टार्ट कर सकते हो. जैसे मैंने कहीं पढ़ा था किसी ने वाटर स्ट्रेस के ऊपर लिखा था कि भाई उसने ऐसा लिखा था कि ना कि 2 बच्चे हैं अलग अलग, एक रिच है एक गरीब है, ठीक है. तो उसमें प्रोफेसर एक्चुअली एक सेकंड आपको मैं बोल रहा था कि देयर आर फ्यू पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दैट फ्लुएंटली, सो इफ पॉसिबल थोड़ा सा बायलिंगुअल या फिर इफ पॉसिबल इंग्लिश, so that will be much better option if you can. I was saying that I have read the essay few months back. The essay was on a topic of water stress. So the person who has written that essay, he started it with a poem. This is called, which is known as water paradox, in which two ninth standard girls are talking to each other, where they all providing, or they both saying that ki I take bath 3 times a day. Other girls say I don't have clean water to drink. Others say we have fountain in our building. Others said we don't have water for 3 to 7 days. तो ऐसी करके कुछ स्टोरी थी. तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई पोएम बना के जिससे आप टॉपिक को लिंक कर सको. एंड वन मोर थिंग, यू कैन स्टार्ट विद start with this discussion approach. Like 2 people are discussing, like father and children are discussing. Children ask his dad, what is better practices, dad? What is best practices? तो फिर dad उसको reply करता. तो ऐसा भी कोई एक डिस्कशन वे में भी इंट्रोडक्शन हो सकता है. तो बहुत सारे तरीके हैं. एक मैंने आइडिया दिया है बस इंट्रोडक्शन. Okay sir. So introduction should be covered up in like around 1.5 page maximum. देख लो मतलब 1.5 page. After that usually there is an anchor paragraph, right? मतलब काफी सारे topper copies also talk about this, that it is better if you are able to just give an idea to the examiner how you're going to approach the essay. It is not always possible to have an anchor paragraph because you might not be clear yourself. There might be paucity of time, etc. But it is better to have. So that anchor paragraph usually will be like professor was saying, some others were saying that you can
give a general idea of what you understand by the topic, best practices, better practices. So someone can take of it as like I did, ki it is about standard operating procedures and how they need to be improved constantly like that. Or it could be anything, like everyone is saying, it is very subjective, but it is good to have that kind of a structure. And after that, there are various ways of proceeding the essay. So anyone wants to add, please go ahead. I have also written one essay. Shall I मतलब ये पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? मैंने एक ऐसे सबमिट किया था यहाँ. Like that about that anchor topic, anchor paragraph. One of the like 2019 topper, he got like very good marks in essay. So he used to review my essay. He told me that instead of giving this anchor paragraph, don't write such thing, because इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो. ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता. आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बट प्रोफेसर सॉरी टू इंटरप्ट यू. आई थिंक यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, हम स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इट्स बेटर वी स्टिक टू द टॉपिक की जो अपन ने इंट्रो सोचा है, कोई स्टोरी लिखा या फिर आपने जैसे कोट बोला, उसके आगे व्हाट विल बी योर स्ट्रक्चर, है ना. मतलब व्हाट शार्दुल वाज ट्राइंग टू से वाज कि आगे स्ट्रक्चर कैसे करना है. यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट थिंग. तो अब आप लोग सब बताओ कि व्हाट वुड योर स्ट्रक्चर बी लुकिंग लाइक. What all different questions will you raise and how would you address it? I just like to add one point to that. Quickly, मेरे को हरी को बोलना है. Hari, since your screen is being recorded, it will be better if you just stick to the discussion window if possible. Use Telegram. Sure. Yeah. Thanks. Guys, continue, guys. We can have the things like citizen charter can be the SOP type of thing, na? So that we can improving the citizen charter. ये भी डाल सकते हैं introduction में citizen charter. I had submitted one essay when I have discussed. Shall I just read out everything that I had given in the anchor para and everything the structure is given? Go ahead, sir, please. Yes, sir. I guess it's my only. Hari bhai, can you please scroll down, scroll up, so that I can just start with this. Actually, there was some ambiguity. I guess it was not based upon anthropological optional subject. It was like anthropological evolution. I just wanted to highlight the factor. Okay, so I have divided the essay in 10 pages. It is standard procedure to write 9, but I have divided it 10 pages. My introduction would start with an anecdote. I could have started with elaborating it because it was quite quirky. I mean, it was quite ambiguous. As Shardul sir has already mentioned that it was in single quotes, so it was open to interpretation. But I followed two anecdotes just to complement one and other, so that the examiner gets the idea that yeah भाई इसने समझ लिया है सारा ऐसे, मतलब इसने क्रक्स पकड़ लिया है. So my first anecdote was based upon anthropological evolution of human life. That मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं लिखता starting में कि it is anthropological. I would have started with the early men. They used the rocks. They knew that they are the rocks. They used, पहले मैं practices को evolve कराता, फिर उनसे better practices, फिर उससे refine होके best practices तक आता. तो पहले मैंने practices को evolve करवाया कि रॉक वहाँ था, उसको पहले हंटिंग के लिए यूज किया गया. फिर मैंने उसको बेटर प्रैक्टिसेस तक एमर्ज करवाया, जहाँ पर मैंने बताया कि उससे फायर के मतलब ये तो सभी को पता है कि फायर कितना ज़्यादा बड़ा एवोल्यूशन था. उसके बाद फिर मैंने कंटेम्प्रेरी में बेस्ट प्रैक्टिसेस तक आया कि पहले हमें पता था ह्यूमन बींग्स को कि कोल से एनर्जी जनरेट हो सकती है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? rather than coal we should move for renewable energy. So I always actually SD sir has already mentioned ki do share it again if possible. Yeah, I will share, Miss Neha. Actually I have shared, and I guess it is in chat of me and Shardul sir that I have distributed it in scattergrams. So again I have applied the same phenomenon, same procedure of scattergrams, that I distribute the whole essay in 3 systems. So now first, second and third systems are visible, I guess, wherein I have dealt with practices, then better practices, then best practices. This was my introduction, which would take around 1.2 pages. And I had to take care that all the 2 anecdotes should be in line, because at times the flow and the coherence of the essay is disturbed. So just after this anthropological in early human being, I would have shifted it to this part. Hari bhai, can you just scroll down a bit?
now here, as you guys were discussing also, ki anchor para is very important. So I guess in this particular essay, it becomes quite evident ki you should use anchor para, because when you have options like technology can replace manpower, it is easy. Matlab, it is easy to comprehend, not to write. It is easy to comprehend, so you can ignore the anchor para. But when there is ambiguity, you should go for anchor para. So anchor para would take around 1 page. Now the body part starts. So in body part, I have written it here like 6 pages. I would write 6 pages because I had. Can you explain your anchor para once? Hari bhai, can you please scroll up, because I guess my anchor para is missing from here. Okay, I will add what all to be discussed in coming 8 pages. अच्छा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ. So I will discuss in the meantime, and we can fill this in the anchor para. It would I would just narrate it down. In this essay, we will discuss about how the practices have evolved in human life and how these practices have shared a better future. मतलब ऐसा करके that what is going to be answered in the question. Like what are the body starts? I have distributed the body in question format. So these questions would be utilized in the anchor para only. I was saving time not to type, so I skipped it. But the questions that are answered in the body are the same that are to be used in the anchor para. Is okay, it okay, continue. हाँ, Continue, बार बार continue, लिखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने फिर सीधा बॉडी से स्टार्ट किया. हरी भाई नहीं will you ठीक है, please- कंटिन्यू. हाँ, हरी भाई प्लीज स्क्रॉल. हाँ, तो सबसे पहले बॉडी स्टार्ट्स में मैं सबसे पहले तो प्रैक्टिसेस के बारे में एक ब्रीफ स्टार्ट देता, क्योंकि ये ऐसे है तो आई हैड टू, मतलब ये सिर्फ 1-2 पैरा में ही कंप्लीट करता. फिर व्हाट प्रैक्टिसेस ह्यूमन परफॉर्म, उसके बाद फिर हाउ प्रैक्टिसेस हैव इवॉल्व्ड. यहाँ भी आई वुड हैव गिवन एग्जांपल्स, एंड देन निगेशन ऑफ निगेशन कॉन्सेप्ट. जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. आई एम सॉरी गाइस. तब तक मैं पढ़ लेता हूँ. नहीं सर, मैं आ गया. गो अहेड प्लीज. So we have a concept of negation. PSIR people could connect with this, but I have to be very cautious कि मैं ज़्यादा ऑप्शनल ना घुसाऊँ. जैसा अभी एक सर ने कहा भी कि आप ऑप्शनल को ज़्यादा घुसाएंगे तो वो मार्क्स काट लेंगे, तो मैंने लिखा भी है, explain well, otherwise marks will be deducted. But I guess negation of negation concept fits very well in this structure of essay. Then best practices, values, habits emerge. पहले मैंने practices समझाया, फिर what practices human perform, फिर how they have evolved, इसके examples दिए. उसके बाद फिर निगेशन ऑफ निगेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर उनको, मतलब मैंने बता दिया कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी आगे रिफाइन होगा, जो बेटर प्रैक्टिसेस बनेंगी. लेकिन मैंने अभी तक पूरा उसको कंप्लीट नहीं किया है, पूरा उन्हें दिया नहीं, क्योंकि अगर मैं पूरा दे दूंगा उन्हें स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने में, तो फिर उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा. उसके बाद मैंने फीचर्स बताए. किसके बताए मैंने? ये मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस के ही फीचर्स बताए कि दे शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल, पॉलिटिकली हार्मोनाइज्ड, इमोशनली वेल बैलेंस्ड, इकोनॉमिकली वायबल. तो इसके सारे के सारे का साथ एक एग्जांपल लिखते जाता कि इकोनॉमिकली वायबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है. कि जैसे हम बोलते हैं कि वी शुड मूव ऑन टू रिन्यूएबल एनर्जी, बट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो दे आर इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स दैट वी कैन नॉट मूव डायरेक्टली टू द बेटर प्रैक्टिसेस. सो दिस शुड बी accommodated in that. Now I have written examples need to be incorporated. Yeah, I had actually in the scattergram I prepare examples differently. I do not fit them in the structure, rather I make examples and then utilize it in my para. So I have examples in another page. So now how best practices get refined to better practices. Now almost 2.5 or 3 pages are already consumed. Now I hit the next part. वरना फिर मैंने बताया I would have exhausted my important points and examiner would have felt कि ये तो खत्म हो गया यहीं पर. So अब यहाँ पर मैंने elaborate किया कि how better practices have been evolved into finer and refined practices. सभी में, in human life I would have used example, in medicine में भी हम लोग देखेंगे as soon as the medical science have evolved, there are better practices, and then better practices have to be emerged into best practices, and then that best practices are also be again refined. तो मेडिसिन की एक एग्जांपल, एक जियोग्राफिकल का एग्जांपल देते कि पहले हम क्या सोचते थे जियोग्राफी के बारे में, आज हम क्या सोच रहे हैं. उसके बाद फिर इन पॉलिसी मेकिंग, ये मैं 100% डालता, ये कोई भी ऐसे हो, आई डू नॉट मिस ऑन दिस पॉलिसी मेकिंग पार्ट, क्योंकि आई बिलीव कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. Could you please elaborate examples as well? I will send. I have actually forgot most of the examples, sir. I have written it. जैसे पहला मैंने मेडिसिन का ये लिखा था कि पहले एनेस्थीसिया नहीं था,
उसके बाद फिर जब एनेस्थीसिया आया तो हम लोग एनेस्थीसिया देने लग गए, बट देयर आर टाइम्स व्हेन द यूरोपियंस हैड यूज्ड एक्स्ट्रा एनेस्थीसिया दैट हैज लेड टू द डेथ। उसके बाद फिर पीपल न्यू दैट एनेस्थीसिया इज टू बी इंक्लूडेड इन अ केमिकल एंड द केमिकल इज टू बी डाइवर्टेड इनटू द नर्व्स ऑफ द पीपल सो दैट द नंबनेस कुड जनरेटेड। तो क्या पहले पहले क्या हुआ था, नंबनेस को जनरेट करने के लिए पैरालिसिस भी हो जाता था। तो आई हैड यूज दिस एग्जांपल की बेटर प्रैक्टिसेस के लिए भी रिफाइंड वर्जन है। फिर स्टिचेस का मैंने बताया, अर्लियर देयर वाज पेन व्हेन पीपल यूज्ड टू गेट स्टिचेस, बट नाउ द स्किन कंज्यूमिंग स्टिचेस आर मेड कि वो आप टाँके लगाएंगे तो फिर वो अपने आप ही स्किन में डिजॉल्व हो जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस एमर्ज हो रही हैं। उसके बाद फिर मेडिसिन में ही डॉक्टर के बारे में बताया था मैंने। एक एग्जांपल डॉक्टर का ये दिया था कि पहले जो डॉक्टर की जो फील्ड थी वो इंडियन एंशिएंट वाले में लेके गया था मैं, कि आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, कि उस टाइम पर कैसे होता था और फिर आगे टाइम पर कैसे जनरेट करके ह्यूमंस ने मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर जियोग्राफी में मैंने ये बताया था कि जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम पहले समझते नहीं थे। पहले हम समझते थे कि वो जिग्जॉ वाला बता रहा था मैं। उसके बाद फिर जिग्जॉ प्लेट्स को, फिर वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया, ऐसे ऐसे करके कि हर जो आइडिया है वो रिफाइन हुआ है आगे लाइफ में जाकर। जैसे कि हम पहले सोचते थे कि ऊपर पहाड़ में, मतलब जो पहले के इंडियन सिविलाइजेशन थे वो सोचते थे हिमालय में जाने से मोक्ष मिलता है और लोग कभी नहीं आते। बट देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल इवॉल्व देयर थिंकिंग कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा इसलिए लोग मर जाते होंगे, वो कभी नहीं आते होंगे। देयर इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो आल्सो कि पांडवस वेंट टू द हिमालय एंड दे अचीव्ड salvation. So in that point I connected it. In policy making I have had used everything, मतलब from Nehru's use of bureaucracy to bypass panchayati raj, उसके बाद फिर how this has failed, and then again how the administration evolved itself to 73rd and 74th constitutional amendment act, and then local governance का point ऐड करके policy making के examples दिया। इन साइंस में मैं, जैसे मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था तो मैंने साइंस में काफ़ी सारे एग्जांपल्स अलग अलग सेग्रीगेट किए थे कि कंप्यूटर साइंस में ये, मैकेनिकल साइंस में हम लोगों ने जो पहले गाड़ियों को बनाया, फिर गाड़ियों को बनाने के बाद अब ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स आ गए, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर अब इलेक्ट्रॉनिक कार्स बना रहे हैं। तो बेटर प्रैक्टिसेस, बेटर के बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही है, ऑटोमोबाइल कार। फिर टेस्ला का एग्जांपल दिया, इलन मस्क के ड्रीम के बारे में बताया कि व्हाट इज हिज ड्रीम, सोशल एटीट्यूड और सोशल मोरालिटी में कैसे चेंज आए हैं। तो सोशल एटीट्यूड में मैंने बताया विमेन की डिप्रेस्ड पोजीशन, उसके बाद फिर बेटर प्रैक्टिसेस, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस आज की विमेन डेवलपमेंट से लेकर अब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट पर आ गए हैं कि विमेन आज डेवलपमेंट को आगे लीड कर रही हैं, विमेन आर लीडिंग द डेवलपमेंट। In spiritual fear as well, I have in spiritual fear I had no example I guess, but in religious fear I had examples of religious ills like जैसे female sati and women were unconfined to patriarchal society. I had used two regions in this, a western region and the eastern region, कि वहाँ क्या दिक्कत हो रही थी और यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी, to make layers. इन जियोलॉजी ऑल्सो ये डार्विन की थ्योरी के साथ कनेक्ट करके बताने की कोशिश की थी मैंने। उसके बाद फिर in these all these examples I would have consumed almost 5 points, and the sixth page would have been of the body part would have been the salience कि इसका significance क्या है, what would have been the significance. So Hari bhai, can you please scroll down? These are the points that I would have included कि अब जब बेस्ट प्रैक्टिसेस से इवॉल्व करते हैं तो गुड्स जो हैं दे गेट रिफाइंड, फाइनर गुड्स, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है, दे हैव गुड ग्रेटर गुड इन ऑल द डोमेन, सोशल डोमेन और सोशल जस्टिस के आइडिया से लिंक करता कि बेटर प्रैक्टिसेस पहले क्या थी, लिबरलिज्म की वैल्यू। हालांकि आई वुड हैव स्टेप्ड इनटू PSI और ऑप्शनल, but I would have consumed all my knowledge here also if I could explain it well to the examiner. फिर empathetic society बने, empathy ज़्यादा आएगी सोसाइटी में। हाँ, उसके बाद फिर better humans कैसे बनेंगे, फिर better personality, and I said कि list is non-exhaustive. उसके फिर in the penultimate conclusion, as my examples were मतलब बहुत ज्यादा क्वांटम में थे एग्जांपल्स। शेखर भाई, आई थिंक कंक्लूजन पार्ट पे अभी आते हैं, थोड़ा सा आप मतलब समराइज कर दिया, तो अगर मैंने समराइज किया तो आई थिंक यू हैव कवर्ड द एंटायर एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन काइंड ऑफ, है ना। हर एस्पेक्ट से आपने बताया कि बेटर प्रैक्टिसेस आर लाइक एडवांसमेंट, चाहे वो साइंस में हो, रिलीजन में हो, सोसाइटी में हो, पॉलिसी मेकिंग में हो, एंड यू हैव ट्राइड टू फिल अराउंड 6-7 पेजेस, ज्यादा ही हो जाएगा उससे, राइट। तो अभी फिर सिर्फ कंक्लूजन वाला पार्ट बाकी है। अभी एक बार किसी और को कुछ, मतलब if anyone else has something to share, and then we can go to conclusion. What do you think? So that we are doing it in a structured manner. Okay. You guys please carry on. Yeah. So please. Yeah. So basically, what he has done is advancement, and that is one way of looking at it.
And the other one which I was suggesting, matlab, there are two ways of looking at it. Like best practices are SOPs or standard operating procedures. And why are they followed? So you can give a little bit about what is the need for best practices, so that there is some kind of quality checks, or there is some kind of जैसे बोलते हैं कि in industry, and you have so many samples, so you cannot check each and every one of them. So you will pick up a small random sample and you will check those, and then you will proceed ki, okay, this batch is foolproof, like that. So those are necessary for having this thing, operational efficiency. But sometimes things can go wrong. So ऐसे बोल के you can connect it. ठीक है ना? So one way which Shikhar was saying, Veer Bhogya, Vasundhara was saying was this one. And the other way is best practices ko connect it with SOPs, and then say that we have to keep evolving our SOPs, because humans are prone to error, and all systems are prone to error, and we need to keep improving. जैसे even जैसे आप you can link it like technologically, if you want to link, you can link to ये गूगल अपने सिस्टम्स को सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते रहता है, राइट? जैसे हम लोग जो एंटीवायरस यूज करते हैं, सो वो भी इम्प्रूव होते रहता है. तो ऑल ऑफ दीज आर लाइक इम्प्रूवमेंट्स. किसी भी वे में हम लोग इम्प्रूवमेंट से इसको लिंक कर सकते हैं. इसमें अगर आप अलग अलग एस्पेक्ट से लिखोगे तो दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द एसे. तो अभी कंक्लूजन पार्ट पे किसी और को कुछ ऐड करना है क्या इस एसे में? The body part of discuss the dimensions. I think we should discuss the dimensions that we can write. जैसे इन्होंने काफी अच्छे से पुतिन सर ने elaborate तो करा था, but he did not give examples many of it, right? तो हमें मतलब ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करने चाहिए जो ज्यादा फिट करेंगे. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की ऑब्वियसली बातें लिखने ही पड़ेंगे, पॉलिटिक्स के लिखने चाहिए, पॉलिटिकल स्फीयर के, फिर जुडिशियरी अगर कुछ लिख पाए तो लिखना चाहिए, गवर्नेंस के बारे में कुछ लिख पाए तो लिखना चाहिए. स्पोर्ट्स इज वन एरिना आई थिंक वी कैन राइट थोड़ा बहुत. मतलब ऐसे अगर एग्जांपल कोई यूनिक अच्छे याद आ रहे हैं ना आप लोग को तो वो बोल दो. एंड आई लाइक द वन फैक्ट की प्रैक्टिसेस बेटर प्रैक्टिस एंड बेस्ट प्रैक्टिस. ये काफी अच्छा लगा मेरे को. मतलब प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस एंड बेटर प्रैक्टिस. अगर हम ऐसे दिखा पाए ना किसी भी एग्जांपल में 3 स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन तो बढ़िया रहेगा. Yes, in one of my examples, I just came to recall it right now, that I have used in science wala. There are different dimensions in my essay. So science wale mein I have used it like the evolution of computers. Like first was the abacus. Abacus was the better practice, and there it was the best practice at that time, but there was refinement. तो फिर computers के उससे मैंने दिखाया था. फिर मैंने बताया ये quantum computers का भी वो हो रहा है. तो the more the computers gain, मतलब वो मैंने जो differentiation आपने बोला, I don't know मैं कितना connect किया इसको, but मैंने ऐसे ही connect किया था कि वो practice थी, उसके बाद फिर better practices और फिर best practices computers के evolution से बताया था. परफेक्ट है यार. मतलब आई वुड से अगर जितना हम ऐसे 3 टायर के एग्जांपल बता पाए ना, उतना हम वो एग्जांपल देके उस पैराग्राफ के एंड में लिख सकते हैं कि इफ दिस वाज द प्रैक्टिस, दिस इज द बेटर बेस्ट प्रैक्टिस, देन दिस आर बेटर प्रैक्टिसेस. एंड आगे भी स्कोप बहुत है. ऐसा हर एग्जांपल के आगे हम क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं. Sir, actually I have had read, but I am not able to मतलब I was not मतलब मैं भूल गया वो फोटो सेंड करना जिसमें एग्जांपल्स लिखा था, बिकॉज आई हैड रिटन इट इन पेन एंड पेपर फॉर्मेट एंड नाउ आई एम आउट ऑफ नहीं कोई इशू नहीं है. अरे यू कैन जस्ट नो इश्यूज. आप जब देखोगे ना, जस्ट स्कैन एंड सेंड इट अक्रॉस, नो इश्यूज. अच्छा एक और चीज, आपने शायद जो हेगल वाला स्टेटमेंट दिखाया था ना अभी, जो मूवमेंट ऑफ आइडियाज या फिर मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं अपन, वो भी कोड कर सकते हैं. हाँ, निगेशन. इसमें एक और आई थिंक कोड कर सकते हैं, जो सॉक्रेटिस का डायलेक्टिक्स है ना, वो बोलते हैं कि गुड लाइफ क्या होता है ये पता करने के लिए, फिर जो बेस्ट चीज है या फिर ऑप्टिमल चीज है वो ढूंढने के लिए तुम्हें डायलेक्टिक्स करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा. तो वो आई वुड से कि डायलेक्टिक्स अमॉन्ग द प्रैक्टिसेस, कि इस चीज को प्रोसेस कैसा आना चाहिए, भी हम सॉक्रेटिस को कोड कर सकते थोड़ा सा. और एक और चीज मैं भूल रहा हूँ, अभी बोलता हूँ, कंटिन्यू कर लो आप. सर इसमें क्रिकेट स्पोर्ट्स बोला ना आपने, तो क्रिकेट की बात कर सकते हैं. लाइक पहले सिर्फ ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन होते थे, फिर रिव्यू सिस्टम आ गया कैमरा वगैरह से लेके, और फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम बोल सकते हैं कि पूरा जो मतलब अभी भी जैसे कोई देखता होगा तो पता होगा ना कि रिव्यू के बाद भी कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस आ जाते हैं. तो बेस्ट प्रैक्टिस होगा कि डायरेक्ट कंप्यूटराइज्ड मतलब अंपायरिंग हो,
और फिर इसको अगर हम कास्ट रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन में एक्सप्लोर करें तो पहले हमने रिजर्वेशन दिया, लेकिन अब बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हम वो रिजर्वेशन में भी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कर रहे हैं। परफेक्ट एग्जांपल भाई। मतलब ऐसे आई थिंक ये काफी ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, सिंपल ऐसे है, अगर उसको स्ट्रक्चर प्रॉपरली करा जाए तो एग्जांपल बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड मुझे यार इंट्रोडक्शन पुतिन सर का बहुत अच्छा लगा, द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जो बताया ना, दैट कंप्लीटली शोज कि भाई किस तरीके से बेटर प्रैक्टिस हो सकती है, क्या हो सकता है वो। हाँ सर, इसमें ना लॉ का भी मतलब डायमेंशन डाल सकते हैं। मुझे ना वो वर्ड्स नहीं मिल रहे, मतलब लॉ जो पहले के लॉज होते थे ना वो ऐसा रिवेंज वाले होते थे, मतलब तुमने चोरी की तुम्हारा हाथ काट देंगे। और अभी की मतलब हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है, तो एक इसको भी लिख सकते हैं कि ये पहले से ज्यादा बेटर मानी जाती हैं। बिल्कुल भाई, इवन पॉलिटिकल स्फीयर में हम बोल सकते हैं ना कि पहले के जमाने में जो किंगशिप है या फिर जो कंप्लीट ओबीडियंस बोलते हैं ना, वो ज्यादा माना जाता था उस टाइम पे, या फिर जो गॉड से जो पावर डिराइव कर रहे थे किंग वो माना जाता था। फिर करंटली जैसे डेमोक्रेसी बेस्ट माना जाता है, इसके पहले सोशलिज्म या फिर जो कम्युनिज्म है उसको भी थोड़ा सा मिल रहा था। तो वी कैन यूज दिस थिंग्स आई गेस थोड़ा बहुत पॉलिटिकल स्फीयर डायमेंशन लिखने के लिए। हाँ, इन द सेंस कि पहले थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी में भी सिविक रिपब्लिकनिज्म, सिविक नेशनलिज्म, ऐसा इवोल्यूशन शो करेंगे पॉलिटिकल स्फीयर में। हाँ, और सेम थिंग आई वुड से इवन गवर्नेंस में। इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं इसमें, जैसे ह्यूमन राइट्स आया है ना, 3 वेव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वो भी मतलब जहां पे भी ऐसे एवोल्यूशन क्लियरली दिख रहा है वो हम लोग डाल सकते हैं। ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे इनिशियली एनवायरमेंट वाज नॉट इवन एन इशू, बट जैसे जैसे पता चला कि एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है, तो देन नाउ वी आर मोर एंड मोर कंसर्न विद इट। तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो कंक्लूजन, पेनल्टीमेट कंक्लूजन वाले से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक पुतिन सर इज सेइंग कि देयर हैव टू बी 2 कंक्लूजन्स। फर्स्ट इज अ शॉर्ट कंक्लूजन, मतलब अबाउट द एग्जांपल्स दैट आर देयर, राइट, एंड देन द अल्टीमेट कंक्लूजन शुड बी लाइक अ बिग पिक्चर। यही है ना कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे थे? ये सर बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि पेनल्टीमेट कंक्लूजन, एज माय एसे है डिफरेंट फैसेट्स और डिफरेंट डायमेंशंस, तो मैं पेनल्टीमेट कंक्लूजन को ज़्यादा करता, मतलब ऐसे में एक दिन आप लोग पता नहीं कितने लोग थे, पार्थ गुप्ता सर ने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने बताया था ऐसे को खोलना होता है फिर बंद करना होता है। तो पेनल्टीमेट कंक्लूजन मैंने इसलिए 1.2 पेजेस दिए क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स खोल दिए थे, तो मैं उन्हें बंद करने में काफ़ी टाइम लेता, इसलिए मैंने 1.2 पेजेस का पेनल्टीमेट कंक्लूजन दिया, और अल्टीमेट कंक्लूजन मेरा 0.8 पेज का ही है, यानी एक पेज में थोड़ा सा कम। ठीक है, आई गेस ये टॉपिक तो हो गया है, राइट? किसी को और कुछ ऐड करना है कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से? आप लोग ही बोल, या तो मतलब कंक्लूजन हुआ कहाँ है अभी? कंक्लूजन बोल दो ना एक बार, क्या क्या लिखोगे, व्हाट आर द कोट्स दैट यू कैन राइट, या फिर फ्यूचरिस्टिक क्या लिख सकते हो कंक्लूजन में? ओके, आई वुड लाइक टू रीड आउट माय अल्टीमेट कंक्लूजन, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि ऊपर जैसे हमने मतलब सारे के सारे अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म जैसा काफ़ी कम, मतलब कुछ हो सकता है कि जैसे शार्दुल सर का था वो थोड़े से उससे स्टार्ट हुआ कि मतलब एक क्रिटिकल वे से कि हाँ बेटर प्रैक्टिसेस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने वो बीच में लिखा, तो मैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने उसे अल्टीमेट कंक्लूजन में एक तरीके के डरावने उससे दिखाया कि अगर क्लाइमेट चेंज के लिए आप बेटर प्रैक्टिसेस में मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप पॉलिटिकल हार्मनी और सोशल हार्मनी में बिलीव नहीं करेंगे तो फिर आप वर्ल्ड वॉर 3 के कनेक्ट कर दीजिए, आप न्यू कोल्ड वॉर से कनेक्ट कर दीजिए, यूएस चाइना ट्रेड वॉर से कनेक्ट कर दीजिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से कनेक्ट कर दीजिए, कि मतलब अगर हम स्टेट को भी अच्छे से इवॉल्व नहीं करेंगे। तो ये मेरा अल्टीमेट कंक्लूजन था, जो एज इफ इट वाज अ क्वेश्चन, कि मतलब ऐसा मेरा मानना है कि एग्जामिनर शुड कीप ऑन थिंकिंग आफ्टर रीडिंग द ऐसे कि यार हाँ, these are the things that keep remain to be answered, मतलब not from the point of view of essay but point of the view of the मतलब स्टूडेंट, कि इसने जो क्वेश्चंस पोज किए कि हाँ सच में अगर बेटर प्रैक्टिसेस में इवॉल्व नहीं करेंगे तो these are the things, कि क्लाइमेट चेंज, अगर जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की तरह हम भी रिलेक्टेंट रहेंगे, ऐसा लिखना नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, तो क्या बेटर प्रैक्टिसेस एमर्ज हो पाएंगी कि नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से टिंट दे दिया कि आई एम नॉट लिमिटेड टू द पॉइंट ऑफ essay, आई एम माई लिमिट टू इमेजिनेशन इज फार मोर देन दिस essay टॉपिक। ये मेरा वो था, टेक था इस पे। राइट। और
जैसे एक और कंक्लूजन टेम्पलेट ऐसा हो सकता है, जैसे अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस को एसओपी के वो वाला अगर अप्रोच अगर ले रहे हैं, तो उसमें कंक्लूजन ऐसा दे सकते हैं कि कितने भी बेटर प्रैक्टिसेस कर ले, ह्यूमन एरर्स ऑलवेज होंगे, है ना। एंड उसी की वजह से जो भी फ्रीक एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे इवन recent we had that unfortunate incident where the CDS chopper has crashed, right? So that pilot was a very decorated officer of the Air Force, फिर भी वो हुआ था। तो those are some examples, ऐसा कुछ example देके आप बोल सकते हैं कि human error हो ही सकता है। So then what is the way forward? So we have to be constant vigil, always looking for bettering our systems। ऐसे करके खत्म कर सकते हैं conclusion, ये conclusion हो सकता है। अच्छा, इस ऐसे में कुछ काउंटर व्यू पॉइंट है क्या? हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि हाँ, सुन रहे। General Bag, go ahead, please. हाँ सर, मैं यही बोल रहा था कि इसको ना हम वेदास वगैरह से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। लाइक वेदास में लिखा गया कि हमें मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, तो इससे बेस्ट प्रैक्टिस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। या जितने भी ऐसे मतलब नोबल थॉट्स है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब इससे बेस्ट प्रैक्टिस मतलब नहीं एग्जिस्ट करेगी। ऐसे करके हम इसका एंटीथेसिस भी कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। और अगर मुझे कंक्लूड करना होता तो मैं कुछ ऐसे बेसिस पे करता कि एक तरफ तो मतलब हम इससे मतलब ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आते जाएं, दूसरे साइड इसका ईवल भी हो सकता है। लाइक पहले फ्यूडलिज्म था, फिर कोलोनाइजेशन हुआ, उसके बाद अब इकोनॉमिक डोमिनेशन जैसे जो चाइना कर रहा है डोमिनेट करने के लिए, तो उसके ऐसे नेगेटिव ट्रेंड्स भी हैं। पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बना, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब बना बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। तो हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए कि जो कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए हो, बेस्ट मतलब हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए। इस कुछ लाइन पे मैं एंड करता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर इंटरनेशनल लेवल पर ले तो जैसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन है, ये सब है ना फर्स्ट वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल है, बट नॉट फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखिए, ये तो उनके लिए एक्सप्लॉयटेटिव है। तो अगर है ना लास्ट में हम ये भी लिखते हैं तो ये भी मतलब एक बैलेंस अप्रोच की तरह काम करेगा। There's no better or best practices. Okay, we cannot sacrifice for the better or the best for the better. Okay, so what we have to do, it's a continuous process. Okay, there's no it's a full stop regarding it. This is the best practice, because as human always have error. We continues to evolve from the evolution till date. Human goes to several phases. In the case of war, in the case of conflict, in the case of emotional or relational issues, we try to even in the society, in the natural environment, or even in the flora, fauna, whatever the cases, we try to adopt the best practices that cope up with our needs, or to bring in sustainability or in our approach. So there are risks, but we will look forward for a future that is always be better for us, not only for us but for the whole society as well. आई थिंक इसमें ना मुझे एक काउंटर व्यू पॉइंट जो याद आ रहा है ना, कि आइडियलिज्म इज अ मिथ। मतलब कि ठीक है यार, हमेशा बेटर प्रैक्टिस रहेगी, बट आइडियलिस्ट व्यू पॉइंट लेके हम कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे अरिस्टोटल बोलता है ना कि वी शुड नॉट सैक्रिफाइस द गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट। तो आई थिंक दिस विल बी काउंटर व्यू पॉइंट में बहुत बढ़िया लाइन जाएगी। Just like the communism, just like these may be utopians or it may be ideals, but these are inspiring. This inspire us to move better. Correct. We can write this. See, basically, Hare, what you are saying is na, this inspiring thing will come in the end during the conclusion phase. Basically, after writing around 8 pages of pro essay or positive points and dimensions, we'll give 1 or 1.5 page of counter viewpoint, जिसमें हम ये सारे opposite points बोलेंगे, and then we'll again come back and say कि ठीक है, there are challenges, there are counter viewpoint, there are different things, but then such a thoughts of idealism and a good thing, they are motivating, they are like motivation for the sake of hard work. and जैसे बोलते ना, innovation या फिर invention is the mother of, ऐसा कुछ क्या quote है? Okay, right. एक और counter example, necessity is the mother of invention. हेलो दिश्यम सर, हेलो, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वर्ड यूज हो सकता है, ये लाइनिंग यूज हो सकती है? डेफिनेटली हो सकता है। मतलब इवोल्यूशन तो आगे बढ़ता जाएगा ना। हाँ, वही, इवोल्यूशन विल कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन।
हाँ, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो सकता है ना। So one who does not evolve from practices to best practice to better practice will somewhere die or somewhere lose out in the race. The thing is ठीक है. there are better essays to the best essay. मतलब हम जितना डिस्कस करेंगे उतने ज्यादा रिफाइंड व्यूज आएंगे, मुझे ऐसा लगता है. बेटर एसेस टू बेस्ट एसे. अगर कोई भी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे कि हम लोग अभी 20 मिनट्स अहेड चले गए, बट हम लोग के आइडियाज अभी भी रिफाइन होते ही जा रहे हैं. तो ये बहुत सोच समझ के दिया उन्होंने. जितना अच्छा हम लोग और बात करेंगे उतना और ज्यादा अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे. बट माई पॉइंट इज कि 20 मिनट आगे चले गए हैं तो क्या दूसरे वाले में चले, क्या तो क्या दूसरा भी डिस्कस हो जाएगा 11 बजे से पहले. ठीक है चलो आगे. शार्दुल, you wanted to say anything? हाँ, तो एक काउंटर एग्जांपल आ रहा था. आई थिंक किसी मैम ने बोला था हाउ ग्लोबलाइजेशन इज लाइक अ इम्प्रूवमेंट बट इट इज एक्सप्लॉइटेटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. तो इसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिमाग में आया था. एक फोर्ड कंपनी के ऊपर एक लॉ सूट हुआ था यूएस में. इफ एनीवन इज अवेयर ऑफ दिस, काफी फेमस था. यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है कि दे वर अवेयर दैट देयर कार्स आर फॉल्टी, but they did not repair that particular fault because the amount for paying the insurance was less than the amount जो मतलब scale up करेंगे तो of avoiding the accident. तो ये काफी था and they had explained कि this is the utilitarian way, this is maximizing profit. तो एक बोल सकते हैं कि corporate world में this is the best practice, right? They are maximizing the profit, but is it really good for the society? तो ये एक दे सकते हैं counter example specific. Sharad ji, you heard about the iPhone. There's a conflict regarding iPhone. So there's a right to repair. Okay, we heard about the right to repair in a European concept. So what they are against this kind of counter practices. Okay, in case of iPhone, in case of Foxtron, you heard about the Foxtron issues. You heard about the Textron. Okay, actually, the globalization issue. I'll give you an example. Okay, this is not a best example. It's a Textron is a oil company in Texas, USA, but they have a plant in the Amazon rainforest. I think it's in. I remember that particular name. It's in Ecuador. Okay, Ecuador. What they done is in the external world, especially out of the Ecuador, they said that okay, because of our initiative, okay, this globalization, there are a lot of jobs, not only a lot of job, better livelihood. They tell the whole world, but in reality, that Amazon forest is out of range. There's every animal in every flora and fauna is affected by the draining of oil. Yeah, I mean drilling of oil and the whole system, and there is a lawsuit still going on. Okay, we can the exploitative behavior. Even the thousands of people were killed because of that one. Okay. All right. So certain counter examples also were quoted, and then the conclusion was open-ended. This seeking the best practices is a never-ending, continuous process. I guess हम लोग दूसरे ऐसे पे भी जा सकते हैं अभी because we need to keep up to the schedule. So we'll proceed to the second essay. Okay, sir. Okay. So second essay was more philosophical than this one. It was real is rational and rational is real. It's essay number 4. Just scroll up a little bit. Ari. Yeah, this one. So anyone wants to start with this? This is apparently one of the tougher ones because it is like directly from optional ye. But like others have already pointed out that there is no need to stick to a very stringent optional या फिर ऐसे specific knowledge. You can open up the topic in a very general kind of a manner. Okay ना, तो feel free to share जो भी दिमाग में आ रहा है इस topic के बारे में. All right, ठीक है, I'll begin. So real is rational. तो the way I can approach this essay or anyone can approach is कि reality. What is reality, right? So we can say that मतलब इसमें कोई specific story मेरे दिमाग में नहीं आ रही. अगर किसी को introduction वाली story आ रही है तो please share करो. But what I understand from this topic is वो Hegel वाला interpretation तो है ही, but a very generalistic interpretation if we are going to say is the need for humans to explain reality, like what is real. जो even ideal versus real, even जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है केव वाला,
और इवन एंशियंट ग्रीक में भी है, तो ये सारे अभी हिस्टोरिकल उसमें हम लोग जाएंगे, बट इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख सकते हैं। किसी को स्टोरी अगर दिमाग में आ रही है इसके बारे में या कुछ अलग इंट्रोडक्शन किसी को सजेस्ट करना है तो प्लीज प्रोसीड। सर आई कैन, बट इट वुड टेक सम टाइम ना, मतलब हिट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अच्छा, ओके, एनीवन एल्स हैज एनीथिंग फॉर दिस? ऐसा कुछ राइट या रॉन्ग नहीं है यार, मतलब फील फ्री टू शेयर, इट्स ओके, जो भी दिमाग में आ रहा है। हाउ विल यू अप्रोच दिस टॉपिक? इसको मैं कैसे समझा कि what is natural in this world, only those things are real मीन्स, और जो भी हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक किया, जो भी अलग चीज बनाया, मतलब नेचर के क्रिएशन के बाद जो भी बनाया, दोज आर नॉट रियल एंड नाइदर दोज आर रेशनल। तो उसके बाद इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और जैसे कि कोई भी चीज एंड होगा तो जो स्टार्टिंग में था नेचर में बस वही बचेगा, और बाकी जो भी इस प्रोसेस में था वो सब की चीजें बेकार है, ऐसा करके कुछ। ये सही इंटरप्रेट हो रहा है क्या? नहीं, वही मतलब वही बोलना चाह रहा हूँ कि देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। एमकेजी जैसे ही आपने बोला है, दैट इज आई थिंक नेचुरलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, या इसको यूटिलिटेरियन भी बोल सकते हैं कि जो सामने दिख रहा है, जो फील हो रहा है, मटेरियल प्लेजर्स, वो ही रियल है, बाकी कुछ आइडियल जो भी है वी डोंट केयर अबाउट दैट। दैट इज वन स्कूल ऑफ थॉट। देयर आर मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट। आप किसी भी एक को लेके यू डोंट इवन नीड टू टॉक अबाउट द स्कूल ऑफ थॉट, बट थोड़ा सा ऐसे में स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा और बेटर हो जाता है, उसको अच्छा शेप आ जाता है इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट विद स्कूल्स ऑफ थॉट, बट कुछ नेसेसरी नहीं है। तो आपने जो बोला वो भी सही है, मतलब यू कैन स्टार्ट लाइक दैट। लीगल का जो Can I start with a story? Yeah, please go ahead. Please go ahead. Before that, MK, can you please turn off your mic? Thank you. Yeah, Hari. Okay. Please go. Okay. It's actually a good story, but I even in my school days I even often hear this one. Okay, there's an egg seller. Okay, he had some eggs, and every day he pick up those and run to the nearby market. And one day, even he thinking that even I just pick up those egg and put in his basket and just walking through his countryside road. And that during that walk, he think that okay, I will send this in the market, and then I will buy a cow. And next day, and after that buying a cow, I will sell the milk, and selling the milk, I will then try to buy another cow. At the same time, I build a farm for not only for the livestock but all the poultries. And even he just moving like that. Okay, even one day I will become the most richer person and the successful person. I have a nice family, have a nice wife, and a lot of land. Actually, he was still walking. He does not realize that he is still walking in the barren road, and there are still dangers in ahead of him. So when he walking through that road, he stuck with a dog. I mean, he confronted with a dog. The dog, even barking, he is not realizing he is still in the dreamy world. And then after some time, there are some annoying noises. Then he find out that the dog is going to bite him. At that moment, he run. He not only run, he lost his basket. Everything in that basket were lost. What morale I want to share is, even he is walking at the moment, we have dream. Everyone have a dream. Okay, what we have, but we have to look at the reality at that moment. There are still things ahead. I mean, even we have think that okay, we are one day become the IAS officer, IAS officer, whatever the officer you are like to become. But you have to think the present scenarios too. We have to revise it. We have to go through the proper way. There is no definite books or definite one. You have to stick on to your plan. You have to revise it. You have to find a solution how to write answers. These are the things you have to do it until you become success. Okay, there are so even you're trying to say, if I can sum it up quickly, you're saying that it is very essential to be rooted in reality. Even when you're making plans future, it is very important. तो वही बोलते हैं ना कि
that is why today is called the present. ऐसा कोई quote है ना कि tomorrow is not here yet and yesterday is gone. Right. Okay, so that is one way. That is a unique way of starting this. Reality मतलब present moment ऐसे करके. What I was trying to say is we can start from like अगर आपको हिस्ट्री से शुरू करना है, we can start from संख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी. फिर आप आइए रियलिज्म की तरफ, थोड़ा सा रियलिज्म का एक टच दे दीजिए. Don't go deep into realism. Then come to present, science. As science explains this world as rational. So whatever is real is rational for science. And then by present examples जो भी हैं, inventions and discoveries हैं. And then give it a religious touch as well. Whatever there is in religions, it is also rational. Everything is logical and reasoned out. तो आप religion, history, past, current, science, nature, हर चीज का एक एग्जांपल देके समेट सकते हैं पूरा. बताओ ना, एग्जांपल बताओ ना सर. सर बेसिक साइंस हो गई, जैसे बेसिक न्यूटन लॉ हो गई, न्यूटन्स की लॉज हो गई, संख्या स्कूल एक मैंने बोला ही सर. बाकी जो रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको कोट किया जा सकता है. नेचर लॉज है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. एवरीथिंग, साइंस बेसिकली वर्क्स ऑन रैशनैलिटी. सो व्हाटएवर इज रियल टुडे, एवरीथिंग हैज बीन रीजनड आउट. अब इसके ऑपोजिट में जो एक पॉइंट जा सकता है वो है एक्सटेंशियलिटी ऑफ यूनिवर्स, जो हम अभी तक रैशनल आउट नहीं कर पाए. कि मतलब ये मैं काउंटर पॉइंट बोल रहा हूँ सर, जो बाद में आएगा, कि यूनिवर्स का अभी तक ना हमें ओरिजिन पता है और ना हमें एंड पता है. सो दैट गोज बियॉन्ड रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. सेम गोज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये चीजें हैं जो काउंटर में चली जाएंगी. आपको नहीं पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल तक जाएगा. वी हैवंट रैशनल डाटा आउट येट. ओके, सो वील कम टू काउंटर पॉइंट्स. अभी आपने ये दो चीजें बोली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपांस ऑफ यूनिवर्स. आई थिंक हिस्टोरिकल उसमें मैं एक आई लाइक टू गिव वन एग्जांपल. दिस एंशिएंट ग्रीक्स यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट इवन बिफोर सॉक्रेटिस. हम यूजुअली सॉक्रेटिस से स्टार्ट करते हैं, बट ये वो एक एग्जांपल है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी और द यूनिवर्स. तो एक हेराक्लिटस करके था. हेराक्लिटस हैज सेड दैट इट इज चेंज एंड पार्मेनाइडस हैज सेड दैट इट इज कांस्टेंट. तो फिर वो एक दो बोल सकते हैं कि कैसे चेंज और कांस्टेंट पे आया. एंड देन इवन एटम भी उन्होंने सजेस्ट किया था कि एटॉमिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स की एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एटम्स. तो वो एक हिस्टोरिकल हो जाएगा, ग्रीक हिस्ट्री. बाद में अभी शेरशाह सर ने जैसे बोला कि इंडियन हिस्ट्री के उसमें ये है ना ड्यूअलिस्ट स्कूल है, यो संख्या स्कूल है. तो वो बोल सकते हैं कि दे वर टॉकिंग अबाउट लाइक गॉड एंड मैन में जो सेपरेशन है. तो वो सब मतलब इवन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और रैशनैलिटी को डिफरेंसेस कैसे है वो दिखा सकते हैं. उसके बाद आई थिंक वी कैन कम टू जो मतलब हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन से जाएंगे. तो आई थिंक वो वी कैन टॉक अबाउट दिस पर्सन रेनी डेकार्ट है ना. आई थिंक रेनी डेकार्ट ने भी बोला था कि कॉग्निटो एर्गो, मतलब उसने बोला था ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम. आई थिंक दिस इज रेनी डेकार्ट स्टेटमेंट. तो मुझे ये याद आ रहा था वो टाइम पे, तो मैंने यही लिखा था कि वो टाइम पे आई थिंक दिस वाज अ टाइम ऑफ रिफ्ट. Sorry, someone was saying something. Rene Descartes. हाँ, रेनी डेकार्ट. हाँ, वही डेस्कार्टेस, कार्टेशियन सिस्टम जिसने दिया ना एक्स और वाई एक्सिस, वही मतलब मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर. तो उसने ये बोला था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम. तो वो टाइम पे ये इवन हॉब्स का काउंटर पार्ट है. थॉमस हॉब्स के साथ ही, मतलब वो उसके साथ ही रहता था. बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये रिफॉर्मेशन और रेनेसांस का टाइम है यूरोप में, जब बहुत साइंटिफिक रेवोल्यूशन चल रहा था. So there was this very positive attitude कि we can solve all our problems using science. तो वो उसने बोला था कि think therefore I am मतलब whatever, यही मतलब rationality की जो हम लोग सोच रहे हैं उसी से we can decide कि क्या करना है क्या नहीं करना है. very scientific approach of life ऐसे. और इसका opposite है फिर spiritual approach की idea is real and ये जो हमको दिख रहा है वो real नहीं है. जो प्लाटो वाला जो concept है ना, केव वाला, तो ये दोनों को हम लोग लिंक कर सकते हैं उसमें. तो इसमें एक पेज चला जाएगा लिंकिंग में. बाकी आई थिंक हम लोग हिस्टोरिकली इसमें आगे बढ़ रहे हैं. तो भी डिमेंशंस में भी खोलना पड़ेगा. अलग अलग डिमेंशंस में दिखा सकते हैं कि कैसे ऑपोजिंग स्कूल्स ऑफ थॉट है जो कि रियलिटी को अलग अलग वे में इंटरप्रेट करते हैं. सो आई थिंक वी कैन प्रोसीड विद दिस वन, राइट. अगर हम लोग एथिक्स में अगर जाएंगे तो एक वही हो जाएगा कि यूटिलिटेरियन अप्रोच है जो कि मटीरियलिस्टिक है, वेयर कैंटी वो है ना, कैंटियन डिओंटोलॉजिकल अप्रोच. तो वहां से हम लोग मतलब उसको लिंक कर सकते हैं कि these are the two ways of looking at ethical reality. ऐसे that is how I opened it in dimensions. तो अलग अलग डायमेंशन, जैसे एथिक्स हो गया, जैसे सोसाइटी हो गया. तो सोसाइटी में क्या होगा,
सोसाइटी में वही होगा कि मतलब द दिस थिंग राइट, सोसाइटी में कैसे इसको देखेंगे, सोसाइटी में कैसे एक्सपैंड करेंगे और फैमिली डायमेंशंस खोलनी है। लाइक हाउ हम ह्यूमन बोलो। इज लाइक आप अगर सोसाइटी में देखते हैं ना तो इसको ह्यूमन नेचर से जोड़िए आप। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन, देन इट बिकम्स टू फैमिलीज, देन फैमिली के क्लस्टर्स, विलेजेस, यू नो, वो चीजों के साइड से मैं बोल रहा हूँ। राइट राइट राइट। और क्या तो सोसाइटी में ये और इकोनॉमी में वो बोल सकते हैं कि जैसे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट, मतलब शुड इट बी प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए या पब्लिक ओनरशिप होना चाहिए। मतलब मैंने बेसिकली ऐसे किया था, मतलब ऐसे सोचा था कि जहां पे भी डाइकोटोमी है ना कि टू सेपरेट वेज ऑफ लुकिंग एट एनी पर्टिकुलर डायमेंशन, चाहे वो सोसाइटी हो, एथिक्स हो और डायमेंशन हो, साइंस में भी है राइट, डिटर्मिनिज्म होता है और वो होता है होलिज्म। आई थिंक ये है ना दो डाइकोटोमी। तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग डायमेंशंस खोलते वक्त हम लोग इसको इलेबोरेट कर सकते हैं जो भी दिमाग में आ रहा है। वैसे ये थोड़ा सा टफ था, मतलब काफी टाइम लगा था हर एक पॉइंट को मतलब सही से ये कर। और एग्जांपल्स कोई दे सकता है क्या, किसी के पास है एग्जांपल जिसके दिमाग में आ रहे हो? सर फॉरेन पॉलिसी में नेहरू की आइडियलिस्ट पॉलिसी की बात कर सकते हैं कि हम लोग इनिशियली ग्रुपिंग के लिए नहीं गए अल्टीम, और फिर चाइना वॉर में भी उनका काफी वैसा एटीट्यूड था, फिर वो फेल हो गया। और ये पूरे डिबेट को हम मतलब इस पूरे ऐसे को ना प्रियम्बल के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रियम्बल में लाइक जितने कीवर्ड्स हैं ना, कि हम क्लेम करते हैं कि इंडिया सोवरीन है, पर क्या यूएस के सैंक्शंस के वजह से हमारे ऊपर मतलब प्रेशर नहीं आता? क्या सारे डिसीजंस मतलब ऐसे सोवरीन होते हैं? मतलब इसको थोड़ा सा पॉजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। हम सोशलिस्ट वर्ड से एक लिख सकते हैं 1991 के बाद इंडिया कहीं ना कहीं सोशलिज्म से थोड़ा दूर हुआ है। सेक्युलरिज्म पे बात कर सकते हैं कि करंटली जैसा मतलब कंडीशंस हैं कहीं ना कहीं इसको टॉपिक से कैसे लिंक रिलीजियस। करेंगे? सर हम क्लेम करते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो सोवरिन है, सोशलिस्ट है, इक्वल है, लेकिन जैसे इक्वालिटी की बात करें प्रेम्बल में मेंशन्ड है, लेकिन क्या अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलेंट नहीं है क्या सोसाइटी में? तो मैं ऐसे बोल रहा था कि मतलब जितने वर्ड्स दिए हैं ना उनको बोल के कि हम ये क्लेम तो कर रहे हैं बट फिर भी ऐसा हो नहीं रहा है। ये तो काउंटर में जाएगा ना लाइक आपका पॉइंट, चैंडलर। हाँ ये जो आप पॉइंट बोल रहे हो ये तो काउंटर पॉइंट में दोगे ना आप। नहीं, मैं इस एंगल से बोल रहा हूँ कि हम मतलब ऑन पेपर क्लेम करते हैं आइडियली कि हम इक्वालिटी है हमारे कंट्री में, हम ऐसा क्लेम करते हैं, बट वो रियल नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट आप इसे कनेक्ट कहाँ कर रहे हो रियलिटी और रैशनैलिटी? मतलब आई थिंक चैंडलर वाला पॉइंट वही है ना, सब्सटैंटिव इक्वालिटी और प्रोसीजरल इक्वालिटी, ये वाला बोल रहे हैं, बट मतलब उतने उसमें पीएसआईआर टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करना है। हाँ अच्छा अच्छा, ओके। Right? Can I say something? Yeah, who is Am I this? audible to you all? Actually, how I will approach this essay specifically, first I will start some quote or maybe some stories, and then my first paragraph will be what is a reality? What do you mean by reality? So, what is a reality? जो कुछ हमने मतलब लाइक हमने फील किया हो, जिसकी कुछ हमारे पास प्रूफ हो, या जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हो, मतलब इट्स की जो आपके पास एग्जैक्टली है। एंड व्हाट इज अ रेशनैलिटी, उसको उसके बाद मुझे उसको डिफाइन करना है कि रेशनैलिटी दैट कैन बी मे बी इमेजिनेशन, या जिस चीज को लेने के लिए हम सोच रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, राइट ना? तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन में जाऊंगी, एंड उसके बाद जितने भी अप्रोचेस हैं, लाइक यहाँ पे जैसे कि अभी सर ने बोला था, शेरशाह सर ने स्टार्टिंग में हिस्ट्री का दिया था, सांख्य स्कूल का, सेम मैं बुद्धिज्म की फिलोसफी लेकर आऊंगी कि रियल इज अ सॉरो, जीवन में दुख है, ये एक रियलिटी है, बट देयर इज अ वे, रेशनैलिटी है कि उसका हमारे पास एक अप्रोच है। सेम ऐसे ही अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं, तो पॉलिटिकल में डेमोक्रेसी इट्स अ रियलिटी, बट इसका एक पर्टिकुलर एक थॉट, एक डेवलपमेंट जिस तरीके से आई है कि आगे जाके कुछ के और अप्रोचेस ऐसे हो सकते हैं, दैट इज रेशनैलिटी। एंड सेम काउंटर पॉइंट में तो जो आप लोग बात कर रहे हैं, फिर वो चीजें यहाँ पे ऐड होंगी। तो ये इसमें कोई पोस्ट मॉडर्निस्ट को डाल सकते हैं क्या, अगर कोई आई एक्सप्लेन थिंक कर पाए तो? मैं वही सोच रहा था, जैसे आप जब आप कह रहे थे ना फॉरेन पॉलिसी में, तो उसमें वो आ जाएगा ना कि पोस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट वो आ जाएगा कि कैसे
रियलिटी इज व्हाट यू मेक ऑफ इट, वो वाला डाल सकते हैं, मतलब पोस्ट रियलिटी, कि मतलब रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है, हम लोग खुद अपनी रियलिटी बिल्ड कर सकते हैं ऐसे, बट वो शायद काउंटर पॉइंट में आएगा वो। हाँ, काउंटर के लिए मैं सोचा ये। राइट, तो वो काउंटर में डाल देंगे। बाकी इसको अभी डायमेंशंस में अगर हम लोग खोल रहे हैं तो आई थिंक जैसे बाकी लोगों ने बोला है वैसे इसको खींचना है ऐसे को, तो और किसी को अगर एग्जांपल्स दिख रहे हैं मुझे, मतलब आई थिंक लवासना मैम ने बोला कि वही बुद्धिज्म वाला कॉन्सेप्ट, इसमें आई थिंक जैनिज्म वाला भी आएगा ना, अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का कि देयर इज नॉट वन रियलिटी, एवरी बीइंग एवरी वन हैज हिज ओन रियलिटी, ऐसे मतलब यू कैन नॉट जज एनीवन, दैट इज व्हाई यू शुड नॉट किल एनीवन और नॉट हार्म एनीवन, ऐसे तो वो भी बोल सकते हैं कि रियलिटी इज नॉट डेफिनेट, वो हर एक के लिए डिफरेंट होता है, तो ऐसे मतलब जितना भी आपको पता है एग्जांपल्स आ रहे हैं दिमाग में वो आप डाल सकते हो, रियलिटी से रिलेटेड है, ये जैनिज्म वाला था। एग्जैक्टली एक कोट भी है, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझे, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं, द रियलिटी आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ बट व्हाट आई एक्सेप्टेड व्हाट सोसाइटी टॉक्स अबाउट मी, सो इस तरह का कुछ कोट था, तो वो भी आप बीच में जब आप ऐड करोगे लाइक टेक्नोलॉजी के साथ, तो वहां पे ऐसी चीजें हम कोट कर सकते हैं, या और कुछ भी जो भी माइंड में आ रहा हो। इसमें ना एक पॉइंट व्हाट वी कैन ऐड इज रियल इज रैशनल, सो इट इज लाइक चार लोगों को कांख पे पट्टी बांध के अगर आप हाथी को टच कराओगे ना, तो जो सूंड पकड़ेगा वो सूंड बोलेगा, जो पूंछ पकड़ेगा पूंछ। सो इट इज द थिंग इज अपने पर्सपेक्टिव से भी रियलिटी चेंज होती है, वॉट एवर पर्सपेक्टिव यू आर कैरिंग, आपकी रियलिटी उस हिसाब से होती है और उसके हिसाब से आपकी रैशनैलिटी, मतलब आप सोचते भी अपने पर्सपेक्टिव से हैं। सो फॉर अ सिंगल रियलिटी देयर कैन बी मल्टीपल रैशनैलिटीज जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है और उनके पर्सपेक्टिव्स पे डिपेंड करती है। Yeah, that's very nice example, can be used in a starting point. स्टार्टिंग इससे बहुत अच्छी हो सकती है, जो शेषा सर का जो अभी एग्जाम्पल था। वही राइट, ये स्टोरी की तरह हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, और फिर स्टोरी लिखेंगे और फिर बोलेंगे कि ये बुद्धिज्म का ही एग्जाम्पल है ना, आई थिंक शेरशाह सर, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ने बोला था कि ये ऐसे 5 लोग हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द एलिफेंट इफ दे ट्राई टू कैरेक्टराइज इट यूजिंग इट्स मतलब एक इंडिविजुअल पार्ट्स है ना ऐसे, तो वो स्टोरी में डाल के या फिर इसको मॉडिफाई करके, मतलब एग्जैक्टली सेम स्टोरी नहीं है, दूसरे मॉडिफिकेशन के साथ डाल सकते हैं। या तो आप इसमें कुछ क्रिएटिविटी ले आइए ना, आप अपनी कोई स्टोरी डाल दीजिए, जैसे प्रेजेंट पर्सपेक्टिव्स में भी है ना, जैसे लोग अपनी अपनी रियलिटीज अपने अपने हिसाब से और अपने अपने थिंकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से परसीव करते हैं। अगर मैं एक फोटो दिखाऊं किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन SSBs इन एयरफोर्स, ठीक है, तो उसमें आपको एक फोटो दिखाई जाती है एंड उसमें आपको बोला जाता है एक स्टोरी बना के लिखो इसके ऊपर। 10 लोग लिखते हैं, 10 की स्टोरियां अलग होती हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से, एक ही रियलिटी है बट रैशनैलिटीज अलग हैं उसको लेकर के। एंड सिमिलरली वी कैन गो टू अदर पार्ट ऑल्सो कि रैशनैलिटीज अलग हो सकती हैं एक ही रियलिटी को लेकर के। राइट, और आई थिंक ये जो अलग अलग परसेप्शंस होते हैं उससे अपनी आपकी पर्सनालिटी भी शो करती है कि आप कैसे सोचते हो, किसी इमेज को देख के आप उसको जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वही बोलेंगे कि रियलिटी इज जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब है ना, तो वो दोबारा रीनी डेस्कार्टस वाला आ जाएगा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो हम लोग जो सोच रहे हैं वो हमारी रियलिटी बन रही है। तो थोड़ा सा वेग हो रहा है डिस्कशन गाइस, बिकॉज टॉपिक ही थोड़ा वेग है, काफी ओपन एंडेड टॉपिक है, आई डोंट थिंक दैट दिस टॉपिक हैज बीन क्लोज्ड येट, अभी भी हम लोग रियलिटी के बारे में वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, और आगे जाके जब हम लोग जैसे काउंटर एग्जांपल तो एक दे दिया पोस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म का, एक और काउंटर एग्जांपल दिमाग में अभी मेरे आया था, तो मैं शेयर करूँ या अगर किसी और को बॉडी में शेयर करना है तो अभी करो शेयर। काउंटर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ साइड में, करूंगा शेयर थोड़ी देर में। सर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं यूएन के, वो अचीवेबल नहीं है, वो हर कंट्री के लिए अचीवेबल नहीं है, या फिर COP26 के जो गोल्स हैं वो बहुत वेग टाइप के हैं, सब लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे यूरोप में कहते हैं कि जर्मनी बहुत ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, पर एक्चुअली उसने कोल प्रोडक्शन मतलब कोल से एनर्जी यूज़ करना बढ़ा दिया है, तो दीज कैन बी एग्जांपल्स ऑफ करंट टाइम। तो इसको हम लोग ये रियलिटी से कैसे जोड़ेंगे? आई थिंक एक चीज याद रखनी है कि जो भी एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं ना,
उसको वी हैव टू लिंक विद द टॉपिक। तो जैसे एवीआई सर आपने जो बोला उसको थोड़ा लिंक करके दीजिए। जैसे COP26 वाला आप कह रहे थे ना, तो उसको रियलिटी वाले से कैसे लिंक करेंगे? हाँ, जैसे क्या जो गोल्स सबके लिए बनाए हैं, पर वो फिर लगता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज है वो अलग अलग मतलब इस पे बटे हुए हैं, और वो एक दूसरे पे वो ब्लेम डाल रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि तुम कंट्रोल करो, तुम कंट्रोल करो। और ऐसे मतलब दूर से ऐसे लगता है कि ये बहुत रियल है और ये अचीवेबल है, पर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो मीटिंग में जितने भी कंक्लूजन है वो ज़्यादातर रैशनैलिटी ही दर्शाते हैं, कि मतलब हम कोई चीज़ कंक्लूड नहीं कर पाते। एक तो ऑलराइट, मतलब बेसिकली काउंटर पॉइंट में जो बोला था ना आपने, हाँ बोलो। एंड किसी का आई थिंक माइक चालू है, तो अगर जो बोल नहीं रहा ना तो अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, एक देख लीजिए किसका चालू है। बोलिए शेर शाह सर। वही बोल रहे थे ना कि थोड़ा नैरो आउट करते हैं इसको, थोड़ा सा काउंटर की तरफ जा रहे थे। तो जैसे मैंने बोला था ना कि यूनिवर्सल एक्सपेंशन, बर्थ एंड एंडिंग ऑफ यूनिवर्स इज स्टिल नॉट नोन। तो जो चीज़ रियल में नोन नहीं है उस पर आप बस रैशनैलिटी लगा सकते हैं, रियलिटी आपको अभी भी नहीं पता। तो एवरीथिंग विच इज़ रियल कैनॉट बी रैशनल। यूनिवर्स इज रियल बट स्टिल वी डोंट हैव रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो ये काउंटर में चला जाएगा। सेम आप दे सकते हैं यूएफओ साइटिंग्स के ऊपर, दे सकते हैं life on other planet. They are real, definitely, but rationality hasn't explained it till date. तो एसडी सर बेसिकली इसमें और है आपने चैंडलर। सर इसमें हम लोग मीडिया और सोशल मीडिया कैसे हाइपर रियलिटी क्रिएट करता है उसको कहीं मेंशन कर सकते हैं क्या? हाँ, exactly. This is the point that I was thinking about. So what I had thought, like reality is the keyword right here, like real rational. तो पता है कि वो reality is about the existence of things, but we can also connect it with kind of virtual reality. मतलब in the sense कि virtual reality is kind of confusing people, confusing as in creating a kind of a separate existence for them, है ना? अभी काफी सारी चीजें न्यूज में भी आ रही है, जैसे augmented reality हो गई या फिर कुछ ऐसा। तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि पीपल आर नॉट प्रेजेंट इन द रियल वर्ल्ड एज इन दिस वर्ल्ड, द नेचुरल वर्ल्ड, बट दे आर नाउ इन सम अदर डिजिटल वर्ल्ड्स विच, जैसे वीडियो गेम्स हो गए या कुछ हो गया, जैसे रियल लाइफ वीडियो GTA वाई सिटी या कुछ ऐसे। तो उसमें जो छोटे हैं नेक्स्ट जनरेशन दैट इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम, एंड सिंस वी डोंट येट नो द रेजोल्यूशन, मतलब आगे तो और कितना चांस होगा, तो देयर इज अ चांस दैट पीपल, तो इसको ऐसे लिंक करा था मुझे पॉइंट में। आप ये बोल रहे थे ना कि हाइपर रियलिटी और इंटरपेलेशन वाला कॉन्सेप्ट की देयर इज जो मेमेटिक्स होता है कि देयर इज नो वन रियल आइडिया बट एवरीथिंग इज काइंड ऑफ कंट्रोल्ड बाय काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ आइडियाज, ये आप कहना चाहते हैं ना? हाँ सर, और मैं मतलब थोड़ा सा इस एंगल से बोल रहा था कि मतलब जो मीडिया हाउसेस हैं या जो ऐसे पावरफुल लोग हैं वो रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसराइल में कुछ भी होता है थोड़ा सा भी तो पूरा वर्ल्ड मतलब उस पर फोकस करता है, लेकिन अभी अफगानिस्तान क्राइसिस हो गया, 1 महीने बाद न्यूज नहीं आती है उसकी, या फिर म्यांमार में जो हुआ था वहां से लोग भाग गए थे उसकी न्यूज नहीं आई। तो इस तरीके से, या अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक बुल्ली भाई ऐप बनाया था एक इंजीनियर ने, तो वो बहुत इंट्रोवर्ट बंदा था, पर वो सोशल मीडिया रियलिटी की वजह से उसको ऐसा लगा कि ही इज प्रोटेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसे करके मतलब। राइट राइट, मतलब वी आर सीइंग सेटिंग द नैरेटिव, जैसे ग्लोबल मीडिया है वो नैरेटिव कंट्रोल करता है, तो उससे फिर जो नॉर्मल कंज्यूमर उनका पूरा डिसाइड होती है उनकी रियलिटी, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज रेडी टू डीप डाइव, और उन सबके पास टाइम नहीं इतना सोचने का कि व्हाट इज दैट रियलिटी। हाँ एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो सर हम ये कह ठीक है, सकते तो हैं कि काउंटर एग्जांपल्स भी हो गए हैं, अभी थोड़ा रैप अप करना है, किसी को कुछ और ऐड करना है तो यू कैन डू दैट। Sir, yes, I have to add something. Yeah, please. Sir, in mathematics we learn that every rational number is irrational. तो क्या हम मैथमेटिकली इसे शो कर सकते हैं इसमें?
आई थिंक वो जो मैथमेटिक्स का जो डेफिनेशन है ना, वो काइंड ऑफ लाइक सबसेट सुपरसेट का कॉन्सेप्ट है, तो ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल यूसेज में ना रैशनल और रैशनल डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे ना, मतलब ट्रू और फॉल्स जैसे हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक, मतलब अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे तो हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ऐसे डायरेक्टली यूज होगे ना तो थोड़ा एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो सकता है। यू गेटिंग इट? सर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वो इन्वायरमेंट हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। जैसे कश्मीर इशू पाकिस्तानी लोगों के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, मतलब उनकी रियलिटी हमसे अलग है और हम जो सोचते हैं वो अलग है। तो जो इन्वायरमेंट है वो मतलब नैरेटिव वाला, ये नैरेटिव वाले में हो जाएगा कि किसी का टेररिस्ट, किसी का फ्रीडम फाइटर होता है, वो राइट। तो आई थिंक एवीआई वाज द मैथमेटिक्स वाला, was it AVI? Who was that person? जो मैथमेटिक्स वाला irrational, because ये सोचा नहीं था, बट इज अ वेरी, अगर इसमें एक पैराग्राफ तो अच्छा रहेगा आई थिंक। मैं कह रहा था कि एक पैराग्राफ इसमें जा सकता है कि मैथमेटिक्स में जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, में बोल सकते हैं कि टाइम्स रैशनैलिटी एंड इरेशनैलिटी इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, ऐसे कुछ काफी वेग सा अगर थोड़ा कुछ ऐड करना तो हो जाएगा, बट काउंटर एग्जाम्पल में होगा शायद भी। Can we use the IR concept? Okay, actually, we see that the IR is really see that the countries and the state are in conflict with each other. That's the reality. But we, as an idealist or the post-constructivist or the liberal world, see that we are entitled to cooperate with each other. The globalization is an example of this one. Or even the next sense is that, okay, we have cultural identities, or we are human, we have some shared identities, like the functionalist said. So these kind of things can be called these kind of things too. राइट राइट, यू कैन डू दैट। अनदर थिंग, वो नीना टैननवाल्ड वाला आ जाएगा ना, कि मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज वेपन्स ऑफ पीस, बट शी सेज दैट इट इज नॉट द केस, कि देयर आर टैबूज आर स्ट्रांग इनफ टू स्टॉप वॉर, एंड न्यूक्लियर वेपन्स आर जस्ट अ वे टू कीप द न्यूक्लियर दिस थिंग गोइंग, न्यूक्लियर इंडस्ट्री को पैसे मिलते रहने चाहिए। So there actually, are like the feminist anti-militarist. Okay, every military is. They said that they opposed WMD and the use of WMD and kind of violence. Okay, in the reality, though, they know that the reality that they even the country's never gonna use this one. But even this is not a safety valve, because even the conflict is still there. Okay, the genderization of issues, the masculine gender of the forms and norms are in the international arena. Right. And also another thing was coming to mind, like usually we try to keep the counter examples to a very small part of the essay, but I think when the essay is very vague and open-ended, जैसे ये real is rational, मतलब, so we can have a very large chunk as counter examples. I think that is also fine, right? बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, अक्षय सर और others? Can have like 50-50 also in some essay, like not conclusively towards the topic, but keep it 50-50. सी बेसिकली ना, तुम्हें ऐसे में एक पॉजिटिविटी का टोन लाना है, तुम्हें ऐसे में एक फील गुड फैक्टर लाना है। इवन दो बहुत सारे ऐसे में देखा होगा ना तुमने, क्रिटिसिज्म वी कैन डू 50-50 एज वेल, क्रिटिसिज्म या फिर काउंटर बोल दो, बट देन तुम्हें ऐसे में पॉजिटिविटी लाने के लिए यू कैन डू वट एवर इट यू सीम फिट। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि यार काउंटर एग्जाम्पल करने से अच्छा लगेगा तो डू इट, दैट्स फाइन। बट ऐसे की एक जो डिमांड होगी ना, उसको एटलीस्ट 50-60-70% तो एड्रेस करना चाहिए इन माय ओपिनियन। Right, sir. So in this conclusion that or conclusion वाले में, I think we can sum it up by, sometimes the anchor passage can come towards the end also. Anchor as in ऐसे कुछ, मतलब I'm not using specific terminology. I'm saying कि when we are summing up the essay, we can just say कि we have brought about the general we can say general development of understanding of reality, and this understanding of reality is still incomplete. It is an ongoing process. ऐसे बोल के open-ended ending दे सकते हैं इसको, because it's philosophical, it is spiritual. Everyone has his own thing. The things that we discussed, right? Jainism, Buddhism वाला, अनेकांतवाद हो गया,
या फिर वो एलिफेंट वाला एग्जाम्पल हो गया। तो सिंस रियलिटी इज इंटरनल टू अस, तो ऐसे करके, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू बी श्योर कि व्हेन वी आर राइटिंग दी ऐसे वो फ्लो में जो आ रहा है ना, तो रियलिटी पे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप ऐसे कर सकते हो। और ओपन एंडेड और पॉजिटिव, जैसे अक्षय सर जैसे दृश्यम सर बोल रहे थे, सो वी हैव टू कीप इट पॉजिटिव। मतलब वी कैन से कि द सर्च, द थर्स्ट ऑफ द आंसर्स is there in human and that is the thing that is leading to our progress, या ऐसे कुछ करके पॉजिटिव वो दिखा सकते हैं। और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है क्या कंक्लूजन में, या फिर कुछ इन जनरल किसी को कमेंट या एनेक्डोट कुछ शेयर करना है तो कर सकते हो। आई थिंक हमें कंक्लूजन में यार उसका मतलब ये तो बोलना ही पड़ेगा कि इट रिमेन्स एज अ मैटर ऑफ डिबेट, मतलब दिस हैज नॉट सेटल्ड येट। उसका कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस दिखा सकता है क्या स्पोर्ट का, एनी सिग्निफिकेंस या रिलेवेंस? जैसे आई थिंक जो किसी ने बोला था ना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का वर्चुअल वर्ल्ड वाला, वो काफी अच्छा था मतलब, बट कंक्लूजन में और कुछ आ सकता है क्या? सर अद्वैता में एक एग्जांपल है रोप और स्नेक का। अगर हम अंधेरे में रोप को देखते तो वो स्नेक लगती है और हम रिवील करते हैं और इग्नोरेंस दूर हो जाती है। मतलब वो रैशनल और रियल को मतलब जस्टिफाई करता है। कंक्लूजन में तो सर ऐसे भी डाल सकते हैं ना कि as of reality, rationality has explained reality in all terms, but still there are things which rationality cannot explain. तो कई चीज़ें हैं जो इवन रैशनैलिटी के बाहर है। रैशनैलिटी क्या है? बेसिकली कॉमन सेंस एंड लॉजिक टू एक्सप्लेन रियलिटी। बट वही मैंने कहा कि एक मेजॉरिटी चीज़ें एक्सप्लेन है रियलिटी से, बट देयर लाइज सम पेरिफेरीज एंड स्पेक्ट्रम्स विच ह्यूमन रैशनैलिटी कैनॉट डिफाइन, एंड वन ऑफ देम इज इटसेल्फ इज अ ह्यूमन ब्रेन, जिसकी कोई लिमिट्स अभी भी नॉट नोन है। सेम गोज फॉर पेरिफेरीज ऑफ यूनिवर्स। राइट सर, तो मतलब ऐसे करके ह्यूमन ब्रेन, मतलब वही कि ह्यूमन ब्रेन के एग्जैक्ट वर्किंग्स अभी पता नहीं है, सिर्फ मॉडल ही पता है उसके। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स, मतलब वो एक एग्जांपल दे सकते हैं ना कि ब्लैक होल को प्रेडिक्ट किया था, बट आई थिंक लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली हैड अ एक्सरे इमेज ऑफ इट, तो वो भी बोल सकते हैं। और दृश्यम सर, आप जो आर्टिफिशियल, हाँ हाँ बोलिए। नहीं, वो आर्टिफिशियल, वो नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड का आपने बोला था ना कि रियलिटी जो है अभी पता नहीं लोगों को, एंड आजकल एक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी काइंड ऑफ कंसेप्ट आ गया है, वो वाला हम डाल सकते हैं, मैं ऐसे बोल रहा था मैं। राइट सर, उसमें वो एग्जांपल आ सकता है कि जैसे बीच में पोकेमॉन गेम काफी फेमस हुआ था ना, कि उसमें वो ऑगमेंटेड रियलिटी की मैप पे वो लोग प्रोजेक्ट करते थे, और उसमें एक वो उसका जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसा था, द कॉन्फ्लिक्ट वाज दैट kids were actually walking on the street and there were cases of accident also. They are not present in the real world like in natural world, they are in augmented reality, and because of that their life is getting affected. तो ये एक दिखा सकते हैं कि in the future with more and more augmented reality encroaching in our lives, there is a chance that we might lose touch with the actual real world. This can be one of the negative kind of aspects, या फिर not necessarily negative sir, we feel that it is negative right now, but as human beings progress we really don't know after 500 years whether it will actually be negative or not. तो ऐसे ओपन एंडेड एंड कर सकते हैं यार। एक और आई थिंक जो जैसे क्वेश्चन के अंदर रैशनैलिटी के बारे में है ना, तो जो जीन जैक्स रूसो का क्रिटिसिज्म ऑफ रैशनैलिटी, या फिर जो वो नहीं है क्रिटिसिज्म ऑफ साइंस, उसको थोड़ा हम कोट कर सकते हैं कि यार देयर इज लिमिटेशन, मैन एज सच बाय नेचर इज अ, क्या बोलते हैं ना, नाइस, मतलब अच्छा इंसान होता है वो, बट रैशनैलिटी ने उसको बिगाड़ा हुआ है। तो आई थिंक दैट कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड हियर की, नॉट श्योर है, मतलब फिट हो सकता है क्या वो यहाँ पे? सर तो ये मतलब मुझे जितना आपने अभी जैसे कोट किया ना, तो किसी का मैंने अभी वो पढ़ा था कि वो पिग्स फिलोसफी यूटिलिटेरियन वाला, तो वो बोल सकते हैं कि इन सर्च ऑफ प्रॉफिट्स या फिर यूटिलिटी समटाइम्स पीपल बिहेव इन अ वेरी इरेशनल मैनर। तो ऐसे इसको लिंक कर सकते हैं क्या? दैट विल बी मोर इजी हो जाएगा उसको एक एग्जांपल देके लिंक करना। वो भी कर सकते हैं। आई थिंक इसमें प्लेटो का रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज, वो किसी ने नहीं डाला, अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था ना, वो भी आना चाहिए इसमें। There's one more thing, like the essence of me, the existence of me.
करेक्ट। फिर एक और है ना, एसेंस इज प्रायर, ऐसा कुछ तो, एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। मतलब रियलिटी क्या है ये हमें नहीं पता होता है, बट सोसाइटी शेप्स आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। जो वो नहीं है, सिमन डी बीवेयर एंड आई थिंक एक और कोई है फेमिनिस्ट में, कार्ल सार्त्रे या फिर जो भी यार सार्त्रे है, एग्जिस्टेंशियलिज्म का थॉट है उनका। राइट सर। तो आई थिंक यार प्लेटो लिखने वाला एग्जांपल एकदम दे सकते हैं हम लोग ना, जब जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे को, तभी बोल सकते हैं कि जब ग्रीक हेराक्लिटस यार एक्चुअली पढ़ा था ऑनेस्टली ना। बताओ तो इसमें है ना, लिखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है अभी, बट इन द एग्जाम ऑल दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट एसे टू अटेम्प्ट। एंड सेकेंडली अगर अटेम्प्ट कर भी पाए ना तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है इसमें। Especially हाँ सर, ये finding तो है। better examples, the best examples, to finding the best example, quoting there according to it's very hard. It will be very lengthy. You will have to think of for every page क्या लिखना है, because it's very easy to lose flow, you know, because अगर ऐसे में थोड़ा सा फ्लो अगर ऊपर नीचे हो गया ना, जैसे पहले काउंटर एग्जाम्पल आ गया फिर प्रो एग्जाम्पल आ गया, तो अच्छा नहीं दिखता। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे अभी हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वी कैन सी द प्रॉब्लम्स दैट वी माइट एक्चुअली फेस व्हाइल राइटिंग द एसे, कि पहले काउंटर एग्जाम्पल आता है, फिर हम लोग को याद आता है कि अरे वो भी डाल सकते हैं। तो ये उसमें भी होता है एक्चुअल एग्जाम में। तो बेटर टू अवॉइड सच In many sense. Go ahead, Shalji. Please go ahead. Please. Yeah, I guess we are done discussing this topic। और थोड़ा बहुत इसका तो कोई ऐसे डेफिनेट है ही नहीं। वी हैव टू कीप टू द फ्लो की थोड़ा प्रो दिया, फिर थोड़ा नेगेटिव दिया, फिर ओपन एंडेड कंक्लूजन। सो आई गेस एंड इट्स 11 आल्सो। सो अगर और किसी को और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। I have to add something. I was actually driving at that time. I messaged you as well. I am now able to speak. Shall I move on with the thing that I was trying to explain? Sure. Okay, so UPSC has asked this question in the form of a debate that real is rational and rational is real. It is open-ended to you. You can interpret it as a statement or as a debate. So my start would have been an anecdote wherein I would have give perspective that real is rational and the other perspective, person B is rational is real. So for giving the perspective, I should first use a concept of deconstruction and synonymization, where we were talking last day, Shardul sir, where I have sent that photo. What I do is I write the synonyms of things. Okay, when it's very hard to deconstruct the essay, I write the synonyms, and with the synonyms I link what are the links that I could create, the linkages I could create in the essay. So if anyone has that image, so I have already done this with one essay, कि वहां पर मैंने I give synonyms to connect it in the later parts of the मतलब in the later parts of the essay. So what I would have done real को किससे connect कर सकते हैं? You can connect real with the thing that we can touch. मतलब सिर्फ एक synonymous thing है। एंड रैशनल को आई वुड हैव कनेक्टेड विद नॉलेज। उसके बाद रियल को एग्जिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं आप, रैशनल को उससे ज़्यादा वेरीफाइड नॉलेज से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वेरीफाइड लिविंग से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आई वुड हैव रिटन 4 to 5 synonyms, and in that synonyms I would have gone with the starter of an anecdote wherein one person is with the idea and other person is against the idea. Again, then anchor paragraph. In the anchor paragraph, I would have substantiated all the questions that I am going to ask in the body part, like what is reality, what constitutes reality, how can reality be how can reality be emphasized, or how can reality be substantiated in part. Now again, I would have gone to the rationality part. What is rationality? Is knowledge rationality? Can knowledge be equated to rationality, and why cannot be? ये हो गया दूसरा पार्ट। इन द बॉडी पार्ट, बॉडी का सेकंड पार्ट, आई वुड हैव आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द एंकर पैराग्राफ. As far as examples are concerned, I would have gone with the normal examples that I could find. Like in reality, I would have gone for in rationality, I would have gone for knowledge as a symbol. And as you guys have already said, that examples are very difficult to collect. And in reality, I would have gone for the historical interpretation of what is real. पहले जो बोलते थे कि जो छू सकते हैं वही रियल है, हवा को छू नहीं सकते, लेकिन फिर सर एक्चुअली जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हिस्टोरिकल एंड ऑल ऑफ दिस। तो मैं ये सोच रहा था कि लाइक टाइम
आ गया तो इफ यू कैन समराइज योर अप्रोच इन लाइक नेक्स्ट 3-4 minutes और 2-3 minutes, बिकॉज ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स वगैरह बुद्धिज्म जैसे एंशिएंट ग्रीक प्लेटो डेकार्ट वगैरह काफी एग्जाम हो गया है डिस्कशन, तो थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा, इसलिए कह रहा था. So If mine you would can have been sum up, तो नहीं, mine would have almost been similar ना. mine would have my will be always मतलब similar ही होगा, इससे कोई ज्यादा different नहीं होगा जो आप लोगों ने डिस्कस किया. मतलब आप एकदम से कट मत कीजिए, बट थोड़ा सा शॉर्ट में सम अप करके यू ट्राई टू हाँ फिनिश, चलिए ये मैं कहना ठीक है, चाह रहा हूँ. हम लोग डायमेंशंस पे नहीं जाते, ठीक है. You guys would have already discussed all the dimensions. I would have went with the body part which you all have discussed, asking the questions to the examiner in the anchor paragraph, and in the meantime in the body we would have addressed all the questions and answers. In the conclusion in the penultimate conclusion, I would have connected to the story in the anecdote, and in the ultimate conclusion I would have posed the question that is rationality or the knowledge real. मतलब वो पोस्ट मॉडर्निज्म वाला व्यू की, is rationality or the knowledge which we are going to emphasize, which we emphasize in this world, is it real, and to what extent we should believe in the rationality, and to what extent we should believe in the reality as well. All right. तो ठीक है. I guess this sums up our discussion for today. थोड़ा सा अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ना, if the listeners are having this feeling that it is a little bit vague kind of discussion, well the topic itself is vague. अभी जैसे पुतिन सर बोल रहे हैं उसको फ्रेमवर्क में डालेंगे तो भी the example itself are so vague that वो वेग होते जाएगा, जैसे लिखते जाएंगे ना उसको इलेबोरेट करते जाएंगे तो वेग होते जाएगा. तो यही है, मतलब ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा सा वी हैव टू कीप इन द फ्लो एंड वी हैव टू स्टिक टू द 11 पेज का रूल. एंड लास्ट में जैसे दृश्यम सर सेइंग वी हैव टू एंड इन अ पॉजिटिव नोट. तो आई गेस अगर इफ नोबडी एल्स हैज एनीथिंग टू ऐड, वी विल रैप अप दिस सेशन फॉर नाउ. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. क्या बोलते हो दोस्तों? आई थिंक व्हाट यू सेड इज करेक्ट. मतलब काफी ज्यादा वेग टॉपिक था एंड वेरी डिफिकल्ट इन एग्जाम हॉल, बट ठीक है, द डिस्कशन वाज वेरी फ्रूटफुल, काफी अच्छा था. द इनपुट्स वर अमेजिंग, मतलब काफी अच्छे इनपुट्स आए इसमें. यस चंद्र सर बोलिए. हम लोग का नेगेटिव साइड ज्यादा हो रहा था ना जब डिस्कस कर रहे थे, तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर रियलिटी रैशनल होती ना तो सोशल चेंज कभी नहीं आता. तो सोशल चेंज लाने के लिए हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो रियल है वो भी रैशनल नहीं है. और फिर एक मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल देके इसको कर सकते थे. नहीं शेरशाह, पता है यहाँ पे क्या हुआ है? आपका जो रियल इज रैशनल का फिलोसॉफी है और मैं और एसडी सर जो बोल रहे हैं ना वो बहुत अलग अलग है. ये मुझे थोड़ी देर पहले ही समझ आया. जब हम लोग जो बोल रहे हैं ना उसमें रियल इज प्रेजेंट. आप जो बोल रहे हैं ना, आप वो शायद फीलिंग वाला बोल रहे हैं कि जिसको हम टच कर सकते हैं वो रियल. आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं. मेरा एक्चुअली यही पॉइंट था जो तुम बोल रहे हो ना. हाँ पता है मुझे, वही बाद में इस स्टेटमेंट को लेकर के हमारी इतनी सारी रैशनैलिटीज हैं, तो दुनिया में कितनी रैशनैलिटीज होंगी. जस्ट इमेजिन, दैट्स व्हाट माय पॉइंट. वेल पुट, एग्जैक्टली. अभी हम लोग थोड़ा रैशनल बनते हैं और इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग, बिकॉज ये तो मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है कि चलते रहेंगे डिस्कशंस इसके ऊपर. ये बात तो है. करेक्ट. चलो, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड. हम लोग ऐसा सेशन हर संडे को करेंगे. अगर पॉसिबल हो तो प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा सब लोग. जितना हो सके उतना ऐसे लिखने की कोशिश करें. नहीं लिख पाओ तो एटलीस्ट मीटिंग में आके पॉइंट्स को डिस्कस कर लो. And you can give value addition comments in the comment box of the channel and group as shown on the screen. And for those who are watching on YouTube, please like, share and subscribe the channel to others. Thank you guys. Thank you sir. Good night.